Hello, my dear students. I'm here with the second poem from your English textbook, Flamingo. And as you see, the title of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. It is written by Stephen Spender. This is the second lecture. In the first lecture, I've already told you something about the author, and I have taught you the first stanza. So here, before going to the second, third and fourth stanza, I would like to remind you a revision of the first stanza. So I would like to give just a brief explanation of the last lesson, that is of the first stanza. There is a classroom. That classroom is situated in a slum. And in that classroom, the poor boys of the slum are there on the benches. The poet Stephen Spender is trying to picturize the whole thing. So he's talking about at least two boys and one girl. They are in the classroom. Other than these students, there are also other students in the classroom. But the poet is particularly presenting to you, just to picturize the whole thing. You can imagine how the class would look like. There are only three students that had been described in detail. One is a boy. And how the boy appears? The boy appears that he has inherited a disease from his father. And what the disease is? His bones are twisted. His hand and legs are twisted, like handicapped. So this is not his fault. He was born like this. So the disease which he is carrying on is not because of his fault, is because he has inherited from his father. And he is very thin. He is very thin. The poet has used the word, look here, has used the word, the paper-seeming boy. The paper-seeming boy means the boy who is very thin, very weak. His skin appears unhealthy, with no show of health on that. So very dull skin he has. At the same time, her hair is also very dull. From his face does not display any life. By seeing her face, you can easily understand that how malnourished is the particular boy. So that boy is representing the whole class. The other boys are also much or less like that boy. So the whole slum, the young boys of the whole slum are like the boy about whom the poet is talking about. The poet is also talking about a girl, particularly a girl. That girl, he has gained abnormal height, but his body is so thin, and his head is very heavy. It seems that his heavy head at any time will just roll down from her shoulders. So her physical symmetry is completely abnormal. Her physical symmetry is completely abnormal. Now the third boy, who is sitting far behind the benches that is behind in the classroom. And the light that is in the classroom is not reaching proportionately to the
back side of the classroom. So there is a hazy like situation, but in that we can just see the boy, particular boy. We can see that boy. He appears healthy with sweet face. However, he is not paying attention to the activities in the classroom, what the teacher is trying to teach to the students, or whatever activities are there in the classroom. He is just paying no attention to all of these. In the classroom, by the side of the third boy, who is on the back bench, there is a window. Through that window, the boy is looking at a tree. Actually, on the branch of that tree is a squirrel. And that squirrel is jumping up and down like it is playing some game. So the boy is very attentively watching that game outside the window. So this is the picture of the boys who are in the classroom. Now let us move to the second stanja. Stanja second, third and fourth. I've explained it in Hindi with word notes. So second stanja. On sour cream walls, donations. पहले लेसन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों, इसमें छोटे छोटे शब्दों में मीनिंग छुपा हुआ है. बहुत ही मीनिंगफुल पोइट्री है ये, स्ट्रॉन्ग पोइट्री है ये. इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेड पोइट्री, यानी हम पूरी बात नहीं करेंगे, अपनी बातों को फ्रेगमेंट कर देंगे, छोटे छोटे हिस्सों में अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे. तो कवि ने इसमें अपनी बातों को फ्रेगमेंटेड रखा है, पूरी बात को कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उस फ्रेगमेंटेड एक्सप्रेशन में हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने की उसने कोशिश करी है. तो ऑन सोर क्रीम वॉल्स, जो कि आप लोग देख रहे हैं, मीनिंग से लिखा हुआ है. यहां सोर का मतलब स्पॉइल, माने वो दीवारें, वॉल्स जो है वो स्पॉइल्ड हो गई है, माने उस पर जो व्हाइट वॉल्स था कभी वो डल हो गया. क्रीम डल कलर को कहते हैं, ऑफ वाइट को कहते हैं, और बिल्कुल वो कलर जो है स्पॉइल्ड हो गया. दीवारें बेरौनक लग रही हैं, दीवारों पर कोई रौनक नहीं है. और कॉमा दे के ये कह रहा है डोनेशन. दीवारों पर जो सजी हुई चीजें हैं, या उस क्लासरूम में जो बेंचेस हैं, जो फ्लोर हैं, या जो भी क्लासरूम की जो प्रॉपर्टी है, वो सारे के सारे स्लम में रहने वाले लोगों ने नहीं बनाया है, वो सब कुछ डोनेशन से आया है. सो दिस पर्टिकुलर वर्ड डोनेशन इज टेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग, that slum dwellers themselves cannot build a school. The school is running on charity. The classroom is running on charity and donations. So this is again one information. And next is Shakespeare's hate. Shakespeare's hate. So on the wall there is a frame, there is a picture, and the picture shows Shakespeare, but her bald head are appearing prominently. उसके जो बॉल्ड हेड है वो बहुत दिख रहा है. क्लाउडलेस एट डॉन. कुछ ऐसे भी फ्रेम हैं जो ऐसे सिटीज को दिखा रहे हैं, जो सिटीज को देखने से ऐसा लग रहा है फ्रेम में, पिक्चर में जो दीवारों पर टंगी हुई है, कि वो सिटी में अभी सवेरा हो रहा है, डॉन हो रहा है, और बिल्कुल आसमान क्लियर है, एकदम क्लियर आसमान है. सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. वो सारे डोम, वो सारे बड़े बड़े मिनारेट्स जो कि अपने शहरों को सिंबलाइज करते हैं, वहाँ के सिविलाइजेशन को, उन मिनारेट्स की, कलकत्ता में जैसे मॉन्यूमेंट है, पेरिस में भी एक बहुत ही मशहूर पैरामाउंट है, इसी तरह से आपको डोम. तो ये जो मॉन्यूमेंट्स, ये जो डोम्स होते हैं, वो अपने पार्टिकुलर कंट्री के सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ऐसे कई डोम्स की वहाँ पर, ऐसे कई मीनारों की वहां पर पिक्चर्स हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. बेल्ड, फ्लावरी, टायरलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, इट्स वर्ल्ड. ये सारे छोटे छोटे जो वर्ड हैं, बेल्ड चर्च
में बेल घंटियां होती हैं। तो चर्च की तस्वीरें हैं जिसमें घंटियां दिखाई दे रही हैं, चर्च में जो घंटियां बजती हैं वो फ्लावरी। ऐसे भी वैलीज दिखाए जा रहे हैं जहां पर बहुत ही फूल खिला करते हैं। एक वैली जो कि ऑस्ट्रेलिया में है जिसका नाम है टायरोलिस वैली, इस वैली की भी थोड़े थोड़े तस्वीरें हैं जो कि दीवारों पर लगी हुई हैं। तो ये सारी चीजें बाहर से आई हैं, किसी ने भेजा हुआ है शेक्सपियर के पिक्चर्स को जो कि दीवार पर लटकी हुई है। फिर ऐसे शहर की तस्वीर, जिस शहर को देखने से, तस्वीर को देखने से लग रहा है कि ये तस्वीर शहर के उस वक्त की है जब वहां पर सवेरा हुआ होगा और आसमान बिल्कुल बादलों से खाली क्लियर रहा होगा। चर्च की तस्वीर, चर्च का एक फ्रेम लटका हुआ है, उस फ्रेम में घंटियां दिखाई पड़ रही हैं। और वैलीज, खासतौर से टायरोलिस वैली जो है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ जो उस वैली में जो फूलों की खूबसूरती है उस खूबसूरती को दर्शाते हुए भी एक वहाँ पर फ्रेम, दीवार पर फ्रेम लटकाया गया है। और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद कह रहे हैं ओपन हैंडेड मैप। ये भी देखिए एक एक्सप्रेशन है, ओपन हैंडेड मैप 7 नंबर में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मैप जो वर्ल्ड मैप है, एक वर्ल्ड मैप भी वहां पर है। ये वर्ल्ड मैप जो है इसके बनने में, बिगड़ने में, रीअरेंज होने में, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की वजह से, वॉर की वजह से वर्ल्ड के जो मैप है वो बदलता रहा है। तो ये जो बदलाव जो है ना, ये ओपन हैंडेड मैप है। ये मैप जो है ये फिक्स नहीं है। जो ताकतवर है उसके लिए खुला हुआ है कि वो आए दुनिया में और इस नक्शे को बदल दे, वर्ल्ड मैप को पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, जैसे भी चाहे वो बदल दे। लेकिन इस बदलाव में इन बच्चों का कोई हाथ नहीं है, स्लम में रहने वाले लोगों का कोई हाथ नहीं है। तो ये ओपन हैंडेड मैप है। तो वो मैप भी जो है ये सारी चीज़ों से बच्चे एसोसिएट नहीं करते हैं, इसलिए कि इन चीज़ों के साथ इनकी भागीदारी नहीं है। शेक्सपियर को देखकर बच्चों को कोई किस्म का उस पिक्चर के साथ वो रिलेट नहीं कर पा रहे। एक ऐसे सिटी को देखकर जो कि बहुत ही खूबसूरत सुबह के वक्त लग रहा है, उस सिटी के पिक्चर को देखकर भी वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे। चर्च को देखकर भी खुद को उस चर्च के साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे। वो फूलों से भरी हुई जो घाटियां हैं, उन घाटियों की तस्वीरों को देखकर ये बच्चे, गरीब बच्चे, उसके साथ खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे। और ये जो वर्ल्ड मैप है उससे क्या होता है, उस वर्ल्ड मैप के बनाने में, संवारने में, उसको बिगाड़ने में इनका कोई हाथ नहीं है, इनके फादर मदर का भी कोई हाथ नहीं है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अरे ये तो दुनिया है, जिसके पास ताकत है उसने इसी दुनिया से काट कर एक दुनिया अपने लिए रख लिया अवार्ड के सूरत में कि ये मेरी है, वो तुम्हारी है, उसमें से आधा हमको दे दो। तो इस तरह से हम लोग कहना चाह रहा है कि दुनिया में जो पॉलिटिकल बदलाव आ रहे हैं, उस पॉलिटिकल बदलाव की वजह से दुनिया का जो पॉलिटिकल मैप में जो चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंजेस में इन बच्चों का कोई हाथ नहीं है, और न कि इनके पेरेंट्स का भी कोई हाथ है, न कि उस समाज का जहां के सलम बसा हुआ है, उस सलम के समाज का इसमें कोई हाथ है। तो ये सब चीजें इनसे परे हैं, इनसे अलग हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, यानी क्लासरूम में जो विंडो है, यही जो खिड़कियां हैं, इनसे बाहर जो दुनिया दिखती है वही दुनिया उनकी है, नॉट दिस मैप। दीवारों पर जो वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, इस मैप, ये मैप जिस दुनिया को दिखाती है, ये दुनिया इन बच्चों की नहीं है, बल्कि ये वो दुनिया, दीज वर्ल्ड्स देयर, दीज विंडोज देयर वर्ल्ड। तो उनकी जो दुनिया है इन खिड़कियों से, क्लासरूम की खिड़कियों से दिखती है, इन मैपों से नहीं दिखती है। A narrow street sailed in with a lead sky। और इनकी जो दुनिया है, उस दुनिया में जो सड़कें हैं वो बिल्कुल पतली पतली सड़कें हैं, और उसके दोनों तरफ घर बने हुए हैं, और इतने करीब करीब हैं, इस तरह से वो बिल्कुल जमावटा है, इतना है लोगों का, घरों का, कि ऊपर देखो तो आसमान नहीं दिखता है, और अगर दिखता भी है तो लीड स्काई दिखता है। लीड यहां से कहा गया कि वो स्काई जमीन से अगर हम देखें और पॉल्यूशन हो, स्मोक्स हो, बहुत कुछ सारी ऐसी चीजें, हवाओं में बहुत सारा पॉल्यूशन हो, तो स्काई बिल्कुल ब्लू नहीं दिखता है। तो इनकी जो बस्ती है, इनका जो स्लम है, वहां से आसमान भी क्लियर नहीं दिखता, जिससे कि शहर में वो जो फ्रेम लगा हुआ है, जिस फ्रेम को देखने से लग रहा है कि ये फ्रेम जो है उस शहर का
सुबह के वक्त इसको तस्वीर को लिया गया होगा और उस वक्त आसमान कितना क्लियर, यहाँ से उनको आसमान क्लियर नहीं दिखता है, लीड स्काई दिखता है। यानी पॉल्यूशन जो फैला हुआ है आसमान और ज़मीन के बीच में, उस पॉल्यूशन से ऊपर आसमान इनको नहीं दिखता है। फार फ्रॉम रिवर्स, इनकी दुनिया जो है ना, ये स्लम, ये जो दरियाएं हैं, रिवर्स हैं, रिवर के किनारों पर जो लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर सैर करने जाते हैं, ऐसे रिवर से बहुत दूर है, केप्स से बहुत दूर है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और जो स्टार ऑफ वर्ड्स हैं, द वर्ड रिटन अंडर द पिक्चर अपीयर्स लाइक डिस्टेंट स्टार्स। और जितनी भी पिक्चर्स टंगी हुई हैं दीवारों पर, उसके नीचे शब्दों में उन पिक्चर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। उस एक्सप्लेनेशन के एक एक शब्द उनके लिए मानो के स्टार ऑफ वर्ड्स हैं। यानी मानो को एक एक शब्द जो है उनके लिए वैसे ही है जैसे कि आसमान पर तारे, जहां तक इनकी पहुंच नहीं है। तो इन तस्वीरों के नीचे लिखे हुए शब्दों में जब वो देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए नहीं है, ये तो आसमान पर का एक तारा है जिसको कि हम तोड़ के नहीं ला सकते हैं। यहां पर पॉइंट ये कहना चाहता है कि ये बच्चे क्लासरूम में सिर्फ आए हैं, और इस क्लासरूम की जो एक पिक्चराइजेशन हुई है उसमें आपने देखा कि जो बच्चे हैं बिल्कुल पॉवर्टी के मारे हुए बच्चे हैं, और जिसके वजह से, पॉवर्टी के वजह से ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनजस्टिस के शिकार हैं। राजनीतिक तरीके से इनके साथ इनजस्टिस हुई है, इसलिए कि इन्हें दुनिया के मैप को बदलने, चेंज करने, उसको अच्छा करने में कोई इनकी भागीदारी नहीं है। इकोनॉमिक इनजस्टिस इसलिए है कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, और इसी दुनिया में किसी के पास बहुत पैसे हैं, बहुत साधन हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस इसलिए कि समाज के बिल्कुल नीचे वर्ग में आते हैं और इसलिए इनके पास जीवन की कोई सुविधाएं नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ इसी 3 पॉइंट को कवि जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिकल इनजस्टिस, इकोनॉमिक इनजस्टिस एंड सोशल इनजस्टिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए स्टैंजा 3, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। यकीनन शेक्सपियर उनके लिए विकेट है। विकेट इसलिए है, यहाँ विकेट हम लोग बदमाश की तरह नहीं लेंगे, विकेट का मतलब वही होता है जो थोड़ा सा नॉटी होता है उसको हम लोग विकेट कहते हैं, चालबाज होता है उसको हम लोग विकेट कहते हैं। यहाँ विकेट का मतलब ये कहेंगे कि शेक्सपियर जो कुछ भी कहते हैं ना, वो इमेजिनेशन की दुनिया को दिखाते हैं, एक ऐसी दुनिया को दिखाते हैं जो भावनाओं की दुनिया है, रियलिटी से बहुत दूर। और इन बच्चों को एक ऐसी दुनिया में जीना है, स्लम के बच्चों को, जिनमें वो शेक्सपियर की भावनाएं फिट ही नहीं होती है। वो एक दुनिया अलग से, जहां पर कोई बीमारी नहीं होती है, जहां मौत नहीं होती है, जहां हमेशा स्वस्थ ही स्वस्थ इंसान रहता है, जहां गरीबी कभी अपना पांव नहीं पसारती है, ऐसी दुनिया का कल्पना कवि लोग, शेक्सपियर लोग, क्रिएटिव आर्टिस्ट लोग करते हैं। लिहाजा इनका जो क्रिएशन है, शेक्सपियर का जो क्रिएशन है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो सारी की सारी भावनाएं इन बच्चों के लिए बिल्कुल विकेट हैं, इनको भ्रम में डालने वाली है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। और ये जो दीवारों पर जो मैप लगा है, वर्ल्ड का मैप, जिसके जरिए इन बच्चों को सिखाने की कोशिश करी जा रही है, ये मैप इनके लिए एक बुरा, बहुत ही खराब उदाहरण है। ये बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये भी देखिए कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। उन पिक्चरों में जो कि वो देख रहे हैं दीवारों पर लगे हुए, वो देख रहे हैं कि शिप है, समुद्र में तैरते हुए जहाज है, उगता हुआ सूरज है, और चर्च वगैरह की जो तस्वीर है या जो और शहरों की तस्वीर है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अपर क्लास के, वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से घुल मिल रहे हैं, कैसे उनको गले लगा रहे हैं, कितनी जीवन की सुविधाएं उनके पास। तो ये पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो प्यार होता है, जो एक केयर होता है, उगता हुआ सूरज जो होता है, और ये जो समुद्र में तैरते हुए जो जहाज, ये सारी चीजें इन बच्चों को टेम्प्ट करती हैं, इसलिए कि इनके पास नहीं है। इनको इनमें लालच पैदा करती हैं कि काश ये सारी चीजें हमारे पास होती। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल बात है कि जब हमारे मन में भावना ये आता है कि हमारे पास नहीं है, तो लालच पैदा होता है,
और वो लालच हमें उकसाती है चोरी करने के ऊपर, कि अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको छीन कर लाएंगे, चोरी करके लाएंगे। तो ये उनको लगता है कि हम चुरा के लाते हैं। शीप को देख के क्यों लालच आता है? इससे कि उनको पता है कि ये शीप जो है इसमें बहुत सारे सामान एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, खाने पीने के सामान, कपड़ा पहनने के सामान, बहुत सारी चीज़ें, जीवन की ज़रूरतें शिप में एक शहर से दूसरी शहर जाती हैं, लेकिन इनके स्लम के पास आकर कभी नहीं रुकती हैं। उनसे कुछ भी चीज़ें इनके स्लम तक नहीं आती हैं। लिहाजा इनको पता है कि उसमें उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें मिलना नहीं है। इसलिए उन शिप को देखकर उन्हें कल्पना में याद आता है कि उसमें चावल की बोरियां होंगी, दाल की बोरियां होंगी, तेल होंगे, हम कुछ कपड़े वगैरह होंगे। ये सब उनको समझ में आता है। तो उनको लालच होता है कि काश ये समुद्र में जो तैरता हुआ जहाज है उसको हम उस पर कब्जा कर लेते, उसको हम छीन लेते, जी वहाँ से चुरा लेते सामान को। ये उगता हुआ सूरज, बस्ती में सूरज को उगता हुआ देखा ही नहीं जा सकता है। स्लम इतना कंजस्टेड होता है कि वहाँ आप सूरज को उगता हुआ देख ही नहीं सकते। तो जब उगते हुए सूरज की तस्वीर ये देखते हैं तो भी लगता है कि काश के ये हमको भी मिलता। कहाँ मिलता कि इसको हम चुरा के लेके आते, हमारे भी खिड़की के बाहर सूरज को उगता हुआ हम भी देख पाते। और वो जो पेरेंट्स जो कि हेल्दी हैं, जो अपने बच्चों के साथ खेल कूद रहे हैं तस्वीरों में, उनको लगता है कि ऐसे कहाँ से पेरेंट्स मिलेंगे, कहाँ होते हैं ऐसे पेरेंट्स, काश कैसे मिलते तो उनको हम चुरा कर लाते। तो ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल हमारे पास जो अभाव है, हमारे पास जो कमी है, पुअर होने की वजह से उस कमी को हम जहाँ देखते हैं पूरा होता हुआ, वहाँ से देखकर उन बच्चों के मन में एक लालच उत्पन्न होता है और वो लालच उन्हें चोरी पर उकसाती है। उनको लगता है कि इसे हमको चुरा लेना चाहिए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। ये सब क्यों होता है? ऐसा क्यों उनके मन में भावना आता है कि इन चीज़ों को हमें स्टिल करना चाहिए? फॉर इसलिए, ये फॉर मतलब इसलिए कि जिंदगी जो है ना, लाइफ जो है ना, दैट स्लाइटली टर्न देयर क्रैम्प्ड होल्स। स्लाइटली मतलब कनिंगली, चालबाजी से। जीवन ईमानदारी से उनके घरों तक नहीं आती है कि हम जीवन है, लो हमें जी लो। नहीं, जीवन भी उनके साथ मजाक करती है और चालबाजी से इनके स्लम की तरफ मुड़ती है और मुड़कर पहुंचती है इनके होल्स में। इनके घरों को चूहे के बिल की तरह बताया गया है, अंधेरा, गंदा और क्रैम्प्ड जो है, इसको कहते हैं कि एक ऐसी जगह जहां पर जगह कम हो लेकिन वहां लोग ज्यादा हों। एक कमरा जहां पर 2 लोग रह सकते हैं, वहां 20 लोग हैं, तो उस कमरे को हम लोग कहेंगे क्रैम्प्ड। तो ये होल है, उनका घर होल है, चूहे के बिल की तरह है। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्रैम्प्ड है। उस चूहे के बिल जैसे घर में भी जहां 1 या 2 लोग रह सकते थे, लेकिन वहां भी कहीं ज्यादा लोग उसमें रहते हैं। तो एक स्लम है, स्लम में उन स्लम डोलर्स के घर हैं। घर भी ऐसे हैं जैसे कि चूहे के बिल की तरह होती हैं, तारीक, अंधेरा। तो ऐसे घरों में जीवन जब अपने आप को टर्न इन करती है, मोड़ती है, तो जीवन मजाक करने के लिए उस तरफ मुड़ती है। जीवन इसलिए नहीं मुड़ती है कि इसको जीने का अधिकार देना है। तो जीवन भी इनके यहां कनिंगली आती है, इन पर इनकी मजाक उड़ाने के लिए आती है। स्टैंजा 3 कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट। इनकी जो डेस्टिनी है, इनके जो जीवन है, उस जीवन के ऊपर मानो के एक फॉग है, एक स्मोकी लेयर छाया हुआ है। और इनकी जीवन जो है ना, एकदम से रात जैसे अंधकार में है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। यानी इनके जीवन हमेशा तकलीफों में रहने वाली है। इनके बाप दादा भी तकलीफ में थे और ये भी तकलीफ में रहने वाले हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, ये भी मुहावरा काफी इंपॉर्टेंट है। इनका शरीर जो है स्लैग हीप की तरह है। द स्लैग हीप रिफर्स टू द बॉडीज ऑफ दीज चिल्ड्रन। इन बच्चों के चिल्ड्रन को रिफर करता है ये स्लैग हीप। हेयर स्लैग मीन्स इम्प्योर एंड हीप मीन्स द मेल नरिश्ड बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन। यानी इन बच्चों की इसका जो शरीर है वो बिल्कुल नहा धोआ के साफ सुथरा नहीं है। इनके अंदर जो हेल्थ की प्योरिटी होनी चाहिए वो भी नहीं है। और बस ये एक
जिस्म हैं जिसमें 1000 बीमारियां हैं, ये स्लैग हीप है। दीज चिल्ड्रन, यही बच्चे, वियर स्किन, ये बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, बल्कि उसी स्किन में होते हैं जो कि उनको जीवन लेते समय मिला हुआ होता है, और उनके उस स्किन से पीप थ्रो बाय बोन्स, उनकी हड्डियां उसी स्किन से बाहर निकली हुई दिखती हैं। इतने कमजोर होते हैं, कपड़े नहीं होते हैं, कपड़ों की जगह वो अपने ही स्किन को पहने होते हैं, लेकिन वो स्किन के अंदर से हड्डियां बाहर दिखाई पड़ती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। और अगर पढ़ने वाले बच्चों के किसी के आंख पर चश्मा है तो वो चश्मा भी ना जुगाड़ू चश्मा है, वो बिल्कुल एंगुलर तरीके से बना हुआ, वो स्टील माने जो अच्छा चश्मा होता है वो नहीं है, बल्कि स्टील का चश्मा है। इसका ये ग्लास तो फ्रेम उसका इस तरह से एक मैनेज्ड किया हुआ चश्मा है विथ मेंडेड ग्लास। उसमें जो ग्लास जो है ना वो डॉक्टर को दिखा के नहीं लगाए गए हैं, बल्कि मेंडेड, किसी ने फेंक दिया, किसी ने छोड़ दिया, वहां से उठाया, उसको फिट कर गया तो लेके पहना हुआ है। लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स। और ये जो उनके आंखों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है और इसमें जो 2 ग्लासेस लगे हुए हैं, वो मानो कि ऐसा लगता है कि कोई बोतल टूटा है और उस टूटे हुए बोतल से टुकड़े हैं जो पत्थर बन गए हैं, जो उनके आंखों में पड़े हुए हैं। ये गरीबी को एक्सप्लेन करने का एक एक्सट्रीम तरीका है, बहुत ही एक्सट्रीम में उन्होंने गरीबी को एक्सप्लेन किया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। उनका स्लम जो है ना फोगी होता है, हर समय पॉल्यूशन में घिरा हुआ होता है, और उनकी सारी स्पेस जो जीवन के रहने की जो जगह है, और उनका सारा समय इसी पॉल्यूशन में, इसी फोग में गुजरता है। सो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। ये लिखा हुआ यहां पर, दिस सिमिली डिस्क्राइब्स द शैटर्ड ग्लासेस ऑफ द स्पेक्टिकल्स। यहां हमने जो इसको एक्सप्लेन किया था, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, आप इसको देखेंगे। और लास्ट वाला जो है ब्लॉट का मतलब जो होता है धब्बा, स्मीयर, स्म्यूच। तो ये जो गरीबी है ना, इनके नक्शे पर, इनके बस्ती के नक्शे पर, इनके स्लम के मैप के ऊपर एक ब्लॉट है, एक धब्बा है, विथ स्लम एज बिग एज डूम। और ये स्लम इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि जीवन यहां पर नष्ट हो जाएगी, जीवन यहां पर डूम, यहां पर जीवन खत्म हो जाएगी। तो ये संज्ञा 3 था, जिसमें एक और अलग तरीके से स्लम ड्वेलर्स का, खास तौर से उन बच्चों के रेफरेंस जो कि स्लम के क्लासरूम में है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट स्तंजा। ये स्तंजा थोड़ा सा, इसमें आशा है, ऑप्टिमिज्म है। इसमें पोएट ने एक तरफ एक ऐसी दुनिया दिखाया स्लम ड्वेलर्स की, जहां पर पॉलिटिकल इंजस्टिस है, इकोनॉमिक इंजस्टिस है, सोशल इंजस्टिस है, गरीबी है, भूखमरी है, बीमारियां हैं, कमी है, अभाव है। एक ऐसी दुनिया को उसने दिखाया। और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया को दिखाया जो स्कूल के दीवारों पर फ्रेम के सूरत में लटकी हुई है। वो दुनिया जो इनकी दुनिया से बिल्कुल अलग, यहां अंधेरा है तो वहां उजाला है, इस तरह की एक दुनिया दिखाया गया है। बाद में लास्ट में स्तंजा 4 में कवि जो है होपफुल हो जाता है और कहता है, अनलेस, यानी जब तक कि ऐसा नहीं होगा, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। गवर्नर यहां पॉलिटिकल ऑथोरिटी को सिंबलाइज करता है, यानी जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, जब तक कि वो नहीं इनिशिएशंस लेंगे। इंस्पेक्टर जो है सिंबलाइज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी को, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगी। और विजिटर सिंबलाइज करता है कि बहुत सारे अमीर मुल्कों से गरीब मुल्कों में जो स्लम है, उस स्लम को देखने के लिए टीम्स आती हैं कि लोग कैसे जीते हैं। तो जब तक कि ये विजिटर्स जो कि अमीर देशों से आते हैं स्लम्स को देखने के लिए, जब तक कि ये कोई स्टेप न लेंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, एंड दीज विंडोज डेट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम। तब तक ये जो क्लासरूम में विंडो है, यही विंडो इनकी दुनिया, इनके मैप को दिखाएगा। द मैप बिकम्स देयर विंडो, एंड दीज विंडोज, और इन्हीं क्लासरूम के खिड़कियों से डेट शट अपन देयर लाइफ्स,
और ये खिड़कियां जो इनके जीवन के ऊपर शट अपोन हो जाती हैं, यानी इनके जीवन के ऊपर आके से बंद हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि एक बड़ा सा कब्र जिसमें कि बहुत सारी लाशें होती हैं और ऊपर से मट्टी से उसको बंद कर दिया जाता है। तो स्लम नहीं है बल्कि कैटाकॉम्ब है, और वो जिस तरह के बहुत सारी लाशें उसके अंदर होती हैं और ऊपर से मिट्टी को आदमी उससे बंद कर देता है, मिट्टी से हम लोग बंद कर देते हैं। इन खिड़कियों से वही कैटाकॉम्ब दिखता है, ये खिड़कियां वही दुनिया इनको दिखाती हैं। ये जो दीवारों पर टंगी हुई दुनिया है वो दुनिया इनकी नहीं है। कह रहा है कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कह रहे कि ए गवर्नर लोगो, ए पॉलिटिकल बॉसेस, ए इंस्पेक्टर लोगो, ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉसेस, विजिटर्स लोगो, ऐसे दुनिया से आने वाले लोग जो कि अमीर देशों से आते हो, तुम लोगों ने अगर इसको ब्रेक नहीं किया, तुम लोगों ने अगर इसको नहीं तोड़ा और तोड़कर इस कैटाकॉम्ब से इनको बाहर नहीं निकाला, तो हो सकता है दे ब्रेक द टाउन, तुम्हारे शहरों के यही जाकर ब्रेक कर देंगे, नष्ट कर देंगे तुम्हारे शहरों को यही। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और आप लोगों को यानी गवर्नर्स को, इंस्पेक्टर को, विजिटर्स को, आप लोगों को इन बच्चों को दिखाना है इन बस्तियों से निकाल कर कि देखो हरे भरे मैदान कैसे होते हैं, हरे भरे मैदान कैसे होते हैं, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर, और उनकी दुनिया को बनाना है ऐसा जो दुनिया के नीले आकाश के नीचे होता है। एज्योर नीला आकाश को कहते हैं, यानी वो आकाश जिसको जब देखते हैं तो बीच में पॉल्यूशन का एक लेयर नहीं होता है। इनकी दुनिया को ऐसे आपको बनाना होगा, इन बच्चों को दिखाना होगा, वो हरे भरे मैदानों को दिखाना होगा, उनकी दुनिया को ऐसा बनाना होगा जैसे कि नीले आकाश के नीचे उनकी दुनिया हो, ऑन गोल्ड सैंड्स, और ऐसी दुनिया जो कि समुद्र के किनारे सुनहरे रेतीली दुनिया है जहां पर सब कुछ अच्छा दिखता है, इनको ऐसी दुनिया दिखाना है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, ये अच्छा मुहावरा है। द यूज, यहां से देखेंगे आप, द यूज ऑफ द टर्म नेकेड हेयर मीन्स नो रिस्ट्रेंट और इनहिबिशन। ये जो नेकेड कहा गया है तो इसका मतलब इन पर कोई किस्म की रिस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। द पोएट वॉन्ट्स द चिल्ड्रेन टू लर्न एज मच एज दे कैन, पोएट चाहता है कि इन बच्चों को उतना ही पढ़ाया जाए जितना ये पढ़ सकते हैं, एंड रिसीव क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम नेचर, और इनको नेचर से एजुकेशन दिलाने की कोशिश करी जाए। एक क्लासरूम में, स्लम के क्लासरूम में बैठाकर एक अजीब माहौल में, एक अजीब इन्वायरमेंट में जो कि सिक इन्वायरमेंट है, वहां से इनको सीख नहीं मिलेगी, उनको वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, उनको खुले प्रकृति में लाना पड़ेगा। प्रकृति से अगर ये सीखेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। इसको कौन कराएगा? लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू बुक्स। किताबें जो है ना, उन किताबों में इनको अपने मदर टंग में पढ़ने को दिया जाए। टंग, हमारा जो टंग है, रन नेकेड कब होगा? जब हमें अपने भाषा में हमारी किताबों को पढ़नी पड़ेगी, तो हम पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि ये भाषा सीखो तो ये किताब समझ में आएगी, ऐसा कोई रेस्ट्रेंट नहीं होगा। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, हेयर व्हाइट लीव्स मीन्स नॉलेज फ्रॉम स्टडी ऑफ बुक्स, एंड ग्रीन लीव्स मीन्स नॉलेज फ्रॉम द स्टडी ऑफ नेचर। इसको अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। तो अगर ऐसा होगा कि इन्हें अपने मदर टंग में किताबों को पढ़ने की इजाजत मिल जाए, तो ये व्हाइट लीव्स यानी किताबों, लीव्स यहां पर पेजेस को ले लें, तो जो किताबों के पेजेस होते हैं अगर मदर टंग में होंगे तो उनसे ये सीख पाएंगे। और अगर इनको नेचर को, ग्रीन लीव्स माने वो सीख जो कि हम लोग को प्रकृति के पुस्तक से मिला करती है, वो पुस्तक भी जब इन्हें इनके मातृभाषा में सिखाया जाएगा तो उससे वो सीख सकेंगे। और यही दो किताबें जो हैं, जो उनके मातृभाषा में हो, कागज रूपी किताब या कि प्रकृति रूपी किताब जो है, वो इनके सामने ओपन हिस्ट्री, ये दुनिया का इतिहास इन्हीं दो जरियाओं से खोली जा सकती हैं। देयर होल लैंग्वेज इज द सन, होल लैंग्वेज इज द सन। द पीपल whose language is optimistic and full of hope can create history.
whose language is the sun. सूरज के नीचे सूरज जब उगता है तो अपने साथ जीवन लेकर आता है। तो भाषा भी जो है ना, इंसान के जीवन में उस सूर्य प्रकाश की तरह होता है। ये सूर्य की प्रकाश की तरह होता है जो उसमें जीवन की ऊर्जा को भरता है। तो अगर उनको उनके मातृभाषा में सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो तब जाके उनका जो भाषा है उनके लिए कोई शेम की चीज़ नहीं होगी, बल्कि उनके लिए वो सूरज होगा, वो सूरज, वो प्रकाश होगा जो उनके जीवन में एक उत्साह लेकर आएगा। तो इस तरह से स्तंजा फोर्ड जो था वो कंप्लीटली, जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि पोएट जो है वो एक सोशलिस्ट है, और सोशलिस्ट चाहता है कि समाज से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस खत्म हो, इनजस्टिस खत्म हो जाए। और यहां मैं एक सीख आपको दूंगा एज योर टीचर कि समाज में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनजस्टिस को खत्म करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी को सोशलिस्ट होना पड़ेगा, लेफ्टिस्ट होना पड़ेगा, राइटिस्ट होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि अगर हम इंसान हो गए, अगर हम आदमी से इंसान हो गए, तो हम किसी दूसरे अपने जैसे इंसान के पीड़ा को समझ सकेंगे, जो पीड़ा के पॉलिटिकल इनजस्टिस की वजह से मिलती है, जो पीड़ा के इकोनॉमिक इनजस्टिस की वजह से मिलती है, जो पीड़ा के सोशल इनजस्टिस की वजह से मिलती है। इस पीड़ा को समझने के लिए आपको सोशलिस्ट नहीं होना है, राइटिस्ट नहीं होना है, लेफ्टिस्ट नहीं होना है, आपको इंसान होना है। मेरे बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप इस पोइट्री को पढ़कर इंसान बनने की कोशिश करें और दूसरे इंसान के दुख दर्द को महसूस करने की कोशिश करें। अगर महसूस करेंगे तो उसका उपाय भी आपके हाथों ही निकलेगा और समाज धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। So end of the poem. Thanks for watching the video. If you are watching the video for the first time, please subscribe and push the bell icon.